Okay, thank you. So this is part 2 of the validation. In this procedure, in this video I'll cover in detail the relation, how the procedure, the architecture of the procedure. It's a SQL Server procedure, nothing else. So let us quickly proceed for that. Okay. Now I told you in that earlier video, the main important thing is the screen ID. So what I'm trying to highlight, we in the last video we already saw this thing, that how the validation works, how it is fired on the server side, how do we in the JSON, how do we say that okay, this should be the validation, where validation should fire. Now important things, आपको पता कैसे लगेगा कि इसके पीछे कौन सा प्रोसीजर है, right? So the important thing is 3019, you see in the corner यहाँ पर ID is 3019. You come to this table is very important. Screen DB mapping, if you see, this is the table screen DB mapping. It is the most important table. And you 3019. If you see here, sorry, if you see, fire this. So you'll get this record 3019. We are concerned with exactly 3019. This record, not this is something else. We are concerned with this. In this there are 3 parts. In another video I will cover what is table name, what is proc name, but let us talk about this validation proc. So अगर मुझे ये जानना है कि इस स्क्रीन के पीछे कौन सा वो प्रोसीजर है जो इस सारे वैलिडेशंस को चेक करता है, तो वो प्रोसीजर है मेरा इस यहाँ पर जो वैलिडेशन प्रॉक कॉलम में लिखा होगा. एंड इन दिस केस द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज validate class teacher monitor mapping new. Okay, now let us see a little bit about this procedure as well, right? So we'll quickly go into the details of this procedure, how is this procedure and what all about this procedure is. Okay, so let me talk a little bit about this procedure. So this procedure has these two variable. For anyone new to this, every procedure we have got 2 XML which are coming in, and for this special procedure, validate procedure, these are the 4 outgoing out parameters. Very important, 4 out parameters. Okay, I'll cover how to read how XML is reading, whatever is reading. Don't worry about this at this moment. Now what we need to worry about is what and how do we validate and how do we use this, and how is this, how does it really work. Okay, so this validation result out 1 means कोई गलती नहीं है, सब सही था. अपडेट रिकॉर्ड इज, नाउ इफ यू सी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ. अगर मुझे अपडेट नहीं करना है तो, अगर मुझे अपडेट करना है, अपडेट रिकॉर्ड इंट इज इक्वल टू 1 मीन्स अपडेट करो, अपडेट, ये सिस्टम जाके उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा. And if I say it as 0, it will not update. Error code, now if you see, मैं यहाँ पर एक error आता है, correct? So this all in SQL, your custom error codes, it goes with a particular error code and the error text. So if you want to send an error code, if you are raising and throwing an error, give a error code and also whatever error text you are giving. So अभी मेरे क्या कंडीशंस हो सकते हैं, लेट अस सी हियर. मेरे कंडीशन क्या हो सकते हैं, मैंने वैलिडेशन प्रॉक फायर किया. नाउ इन दिस केस, फॉर एग्जांपल, स्क्रीन की सिचुएशन वाज दिस. स्क्रीन पे मेरा सिचुएशन है ये, अभी भी वैलिडेशन प्रोसीजर तो फायर हुआ, यानी कि यहाँ पे सब सही है. क्लास टीचर ये है, अटेंडेंस टीचर ये है, अटेंडेंस टीचर इज इक्वल टू क्लास टीचर का चेक बॉक्स नहीं है, दैट मीन्स ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है, कुछ मत करो. सो केस 1 ऑल गुड एंड डू नथिंग, करेक्ट. नाउ केस 2 इज, सपोज मेरा ये लगा हुआ है एंड मेरे को ये फायर करना है, यानी कि अब केस 2 में मैंने कहा एक तो गलत हुआ, चेक दिस. मैंने ये भी कहा कि वैलिडेशन फायर करो, मैसेज दो, और मैंने ये भी कहा कि रिकॉर्ड अपडेट करो. सो इफ यू सी वैलिडेट रिजल्ट एंड also इसका value reset being done, message also being set. Okay, so how do I do this? Let us consider case by case. अगर मेरे को all good करना है तो मैं क्या कहूँगा, validation result की वैल्यू 1 भेजो, यानी कि वैलिडेशन पास हो गया, कोई गलती नहीं है, मुझे अपडेट नहीं करना रिकॉर्ड, मुझे एरर भी नहीं भेजना. दिस इज स्टैंडर्ड, यानी कि अगर ये आउट पैरामीटर जाएंगे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा.
दूसरा मैंने अब आपको इसमें दूसरा केस देखते हैं। यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, मैसेज मत दो लेकिन वैल्यू रीसेट कर दो। तो पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे जाएगी, यानी कि वैलिडेशन रिजल्ट इज इक्वल टू 1, this should be -1 I believe or 0, this should be 0, a validation result is equal to 0 ही होना चाहिए। ये मैं एक बार चेक कर लूंगा, this should be 0, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रिजल्ट वैलिडेशन पास नहीं हुआ है। अपडेट रिकॉर्ड आप देखेंगे ये 0 से 1 हो गया है, दैट मीन्स रिकॉर्ड अपडेट करना है लेकिन मैसेज नहीं भेजना मुझे कुछ अभी भी, राइट। इस केस में मैंने अगेन ये वैलिडेशन रिजल्ट 0 करना जरूरी है। मैंने वैलिडेशन रिजल्ट 0 किया, रिकॉर्ड भी अपडेट कर रहा हूं। रिकॉर्ड अपडेट मतलब जिस रिकॉर्ड पे पर रिकॉर्ड फायर होता है, पर कंट्रोल फायर होता है, जिस रिकॉर्ड पे मेरे को करना है मैं रिकॉर्ड भी अपडेट कर रहा हूँ और मैसेज भी भेज रहा हूँ। मैंने एरर कोड, ये 50,000 के ऊपर के सारे एरर कोड कस्टम होते हैं और ये मैंने मैसेज भेज दिया है यहाँ पे, करेक्ट। So these are the possible combinations. Now let us drive into the procedure. A little bit of things are also there in the procedure. You don't worry, you can copy and paste all these things. आपका मेन कहाँ से शुरू होता है, अब आप देखेंगे जो आपकी जेसन आपने खोली थी, यहाँ पर ना इसके अंदर एक चीज आता है कि @selected field, करेक्ट। ये सब आप कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा बना बनाया, आप बनाएंगे तो भी यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम एनी वैलिडेशन प्रोसीजर। इनिशियली मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी स्टैंडर्ड की, कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ वी आर सेटिंग। अब हम यहाँ पे क्या चूज कर रहे हैं, सेलेक्टेड फील्ड इज इक्वल टू क्लास टीचर। मुझे प्रोसीजर के अंदर कैसे पता लगेगा कि ये जो वैलिडेशन फायर हो रहा है ये किस कंट्रोल के चेंज पे फायर हो रहा है, ऐसे पता लगता है। मैंने देखा ये क्लास टीचर पे फायर हो रहा है अभी, ठीक है। मेरे को क्लास टीचर पे क्या चेक करना है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, ओके। नाउ let me give you first example of this other one, class teacher, staff ID. So now this is staff ID, attendance teacher। अगर इस वाले की ID देखेंगे जेसन की, आपको मेन चीज यही पता करना होगा कि किस कंट्रोल का क्या नाम है और ID है। वो आप कहां से पता कर सकते हैं, अगेन गोइंग टू द जेसन फाइल एंड 3019 इस स्क्रीन की ID है। इस स्क्रीन की ID पे अगर आप देखेंगे अटेंडेंस टीचर की आईडी क्या है, स्टाफ आईडी। तो आपको वहां पीछे जो प्रोसीजर में मिलेगा वो हमेशा जो आएगा चेंज फील्ड, वो यस दिस इज अ प्रोसीजर आपका। अगर मैं स्टाफ आईडी चेंज करता हूं तो वो आपका सिलेक्टेड फील्ड आ गया स्टाफ आईडी। अब हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं क्या CTI ये क्लास टीचर इज अटेंडेंस इज इक्वल टू 1, यानी कि इस कंट्रोल की वैल्यू 1 है कि नहीं। ओके, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इसमें जितने भी ये कंट्रोल्स हैं मेरे, दिस कंट्रोल दिस कंट्रोल दिस कंट्रोल, ये सब की वैल्यू आपको इस प्रोसीजर में इस XML में आती है। ये जो 2 XML हैं, ये XML2 और XML1, XML1 में मेरी हेडर आती है, इस XML डेटा में फॉर्म का पूरा डेटा आता है जो कि हमने यहाँ पे सब पढ़ लिया है, करेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा सेलेक्टेड फील्ड अगर स्टाफ आईडी है और अगर ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब मेरी स्टाफ आईडी क्लास टीचर के बराबर होनी चाहिए, करेक्ट। अब ये यहाँ चेक कर रहे हैं इफ स्टाफ आईडी इज इक्वल टू क्लास टीचर, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर स्टाफ आईडी क्लास टीचर के बराबर नहीं है, एल्स में तब जाएगा जब ये बराबर नहीं है, यानी कि मेरा वैलिडेशन फेल हो गया। देन व्हाट आई एम सेइंग, सेट स्टाफ आईडी इज इक्वल टू क्लास टीचर आईडी, ठीक है, जो कि मैं फॉर्म पे होता है। आप ये स्टाफ आईडी को क्लास टीचर के बराबर सेट कर दो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये वैलिडेशन रिजल्ट 0, यानी कि वैलिडेशन फेल हो गया था। अपडेट करना है मुझे रिकॉर्ड को, एरर कोड और एरर मैसेज, मैंने ये सब कुछ भेज दिया। नाउ एक चीज आपको बार बार, आप टेक्निकल पर्सन मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने वैल्यू कहां भेजी। तो दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन यू सेंड इट फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे भेजा है कि स्टाफ आईडी को @staff id एज स्टाफ आईडी, यानी कि ये जो स्टाफ आईडी मेरा कंट्रोल का नाम है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैंने वैल्यू भेज दी और इस @staff id के अंदर वैल्यू क्लास टीचर के बराबर है, इसीलिए ये इस क्लास टीचर के बराबर की वैल्यू को इसको सेट कर दे रहा है। दिस इज हाउ इट इज। सो व्हाट वी जस्ट नाउ चेक दिस। अच्छा, अब मैं एक चीज और दिखाता हूं कि मैंने इसे क्यों यहां पे भी रिवर्स लगाया। सी, अगर मैं यहाँ क्लास टीचर बदल दूंगा तो ये अपने आप अटेंडेंस टीचर भी चेंज हो जा रही है। अब क्या होता है, अब ये वाला वैलिडेशन फायर हो रहा है कि क्या क्लास टीचर, सेलेक्टेड फील्ड क्लास टीचर, ओके, ये चेकबॉक्स चेक है, ओके। नाउ अब ये चेक करेगा आपका यहाँ पे आके
selected field is equal to this, तो वो अपने आप से जाके आपका वो क्या कर रहा है कि स्टाफ आईडी की वैल्यू इस क्लास टीचर के बराबर सेट किया, इस सबको सेट किया, लेकिन वैलिडेशन रिजल्ट इज इक्वल टू 1 भेज रहा है, यानी कि मैसेज नहीं भेजना, करेक्ट, मैसेज नहीं भेजना, वैलिडेशन फेल नहीं हुआ है, हम यहाँ पे ऑटोमेटिक बनाया है कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाए, इट इज नॉट अबाउट, तो मेरे को यहाँ पे कोई वैलिडेशन की मैसेज नहीं भेजना, मुझे ऑटोमेटिकली बस वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा वैलिडेशन रिजल्ट इज इक्वल टू 1, वैलिडेशन पास है, रिकॉर्ड अपडेट करना है, एरर कुछ नहीं शो करनी है, और संग में मैंने सेलेक्ट रिकॉर्ड करके भेज दिया कि स्टाफ आईडी में किसकी वैल्यू सेट करनी है, इसकी वैल्यू, इसके अंदर क्लास टीचर की वैल्यू है। तो यू सी इन एक्शन दिस इज गोइंग ऑन। Hope it is clear how the validation is working. Now this has to be implemented on various other forms. So thank you for watching this video.